السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ چیولہ منڈل کے مرجا گوڑا کے قریب ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں کنکریٹ سے بھرا ایک ٹپر حیدرآباد جانے والی RTC بس سے ٹکرا گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 20 افراد، جن میں دونوں ڈرائیور شامل ہیں، موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد بس پر بھرا کنکریٹ گرنے سے کئی مسافر ملبے تلے دب گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور 3 JCB مشینوں کی مدد سے بچاؤ کارروائیاں شروع کی گئی۔ اب تک 15 سے زائد افراد کو بس سے باہر نکالا جا چکا۔ زخمیوں کو چیولہ سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 3 کی حالت نازک بتائی گئی۔ یہ ایکسپریس بس تانڈور ڈپو کی تھی، جو تانڈور سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق بس میں تقریباً 70 مسافر سوار تھے، جن میں زیادہ تر طلبہ اور ملازمین شامل تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ طلبہ حیدرآباد کے مختلف کالجوں میں زیر تعلیم ہیں۔ حادثے کے نتیجے میں بس کا ڈرائیور سائیڈ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور جائے حادثے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ہر طرف زخمیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ اس خوفناک حادثے کے باعث حیدرآباد بیجاپور ہائی وے پر طویل ٹریفک جام لگ گیا، جبکہ چیولہ تانڈور روڈ پر گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر متاثر ہوئی۔ ٹریفک جام کے باعث ایمبولینسوں کو بھی جائے حادثے تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ رنگا ریڈی ضلع کے چیولہ منڈل میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے کی تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے ارکان خاندان کی مدد کرے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مہلوکین کے خاندانوں کو فی کس 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ چیولہ سرکاری ہاسپٹل میں زخمیوں کی عیادت کے بعد ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے میڈیا سے بات چیت کی۔ تلنگانہ کے چیولہ میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے ارکان خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ زخمی افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مہلوک افراد کے اہل خانہ کو 2 لاکھ روپے فی کس اور زخمیوں کو 50,000 روپے فی کس مالی امداد فراہم کی جائے۔ تلنگانہ جاگرتی تنظیم کی صدر کویتا نے رنگا ریڈی ضلع میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 15 سے زائد افراد کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے مہلوکین کے ارکان خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سرگرم کویتا نے اپنے ایک ٹویٹ میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ حادثے میں زخمی ہونے والے مسافروں کو فوراً بہترین علاج فراہم کیا جائے اور مہلوکین کے خاندانوں کی بھرپور مدد کی جائے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رنگا ریڈی ضلع کے مرزا گوڑا میں پیش آئے المناک بس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، جہاں ایک ٹپر لوری کے تلنگانہ RTC بس سے ٹکرانے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ انہوں نے اس خوفناک واقعے میں اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجلس پارٹی اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمدردی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ بیرسٹر اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ زخمیوں اور ان کے خاندانوں کو فوری امداد کو یقینی بنائے اور مستقبل میں ایسے سانحات کو روکنے کے لیے سڑک پر حفاظت کے ضابطے کو سختی سے نافذ کرے۔ جوبلی ہلز کے عوام کا کافی ملا جلا ردعمل دیکھنے کو مل رہا۔ جوبلی ہلز کے عوام کا کہنا ہے کہ مگندی گوپی ناتھ نے ہمارے علاقے میں بہت سے ترقیاتی کام کرائے ہیں، ہمارا ووٹ BRS کو ہی جائے گا۔ دیکھیے جوبلی ہلز کے عوام کا کیا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جوبلی ہلز میں ووٹر کا کہنا تھا کہ نوین یادو اور کانگریس پارٹی کے لوگ ڈرا دھمکا کر ووٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ عوام کے دلوں میں مگندی گوپی ناتھ بسے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جوبلی ہلز میں ووٹرز کا کیا کہنا ہے۔ اب تھوڑے بہت ہوئے، تھوڑے بہت ایسی چیزیں ہیں۔ اب بس فری بولے بس فری ہو گیا، لیکن بس کا ٹکٹ بڑھ گیا۔ نہیں اچھا کام کرے، انہوں نے تو اچھا کام اپنی بستی کے لیے تو اچھا کام کیا، چل رہا ہے، لیکن کانگریس کے لیے تو چل رہا ہے، لیکن دینا تو اپنا تو TRS کو ہے جی۔ TRS آنا چاہیے تھا، آئیں گے انشاءاللہ، میجارٹی اچھی میجارٹی جیتیں گے، نہیں بول کے نہیں۔ TRS کو تو اب یہاں پر بھی پورا TRS کو دینے کا ارادہ ہے۔ TRS کے 10 سال میں
कांग्रेस के 2 साल में आपने कौन सी पार्टी में काम किया? टीआरएस के 10 साल में फैला। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली के स्पीकर और विकाराबाद हलके के एमएलए गड्डम प्रसाद कुमार ने चिवल्ला मंडल के मिर्जागुड़ा में पेश आया होलनाक सड़क हादसे का मुआयना किया। रियासती वुज़रा दोडेला श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, कानून साज कौंसिल के चीफ विप पेटनम महेंदर रेड्डी, एमएलए काले यादయ్య, राममोहन रेड्डी, मनोहर रेड्डी और बेट्टी गड्डम श्री अनैया ने जय हादसे का मुआयना किया, जहां बस टिप्पर लॉरी से टकरा गई थी और हुकाम से हादसे की तफसीलात दरियाफ्त की। इस मौके पर स्पीकर प्रसाद कुमार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि इस हादसे में जहां सुबह मिर्जागुड़ा के मुकाम पर एक बस को टिप्पर लॉरी ने टक्कर मार दी, इसमें बड़ी तादाद में मुसाफिरों की जानें चली गई, कई शदीद जख्मी हो गए। हुकूमत और अहदेदारों ने फौरी तौर पर रद्दअमल जाहिर किया और जख्मियों को अस्पतालों में और शदीद जख्मियों को हैदराबाद मुंतकिल किया। तेलंगाना हादसा मरकज मुश्किल घड़ी में तौन फराहम करेगा, बंडी संजय कुमार का बयान। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार ने रंगारेड्डी जिले के मिर्जागुड़ा के करीब पेश आए अलमनाक सड़क हादसे पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना हुकूमत से मुतासरीन को फौरी इमदाद और सहूलतें फराहम करने की अपील की और यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। तेलंगाना खौफनाक सड़क हादसा केस दर्ज, कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चिवल्ला में पेश आए खौफनाक बस हादसे के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती आईपीएस ने बताया कि मुतासरा खानदानों की शिकायत पर चिवल्ला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हादसे में अब तक 21 अफराद की मौत हो चुकी है, जिनमें से 14 की शनाख्त कर ली गई है। देखिए तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चिवल्ला में पेश आए खौफनाक बस हादसे के सिलसिले में पुलिस का इस ज़िमन में क्या कहना है। As of now, 19 people have died in the accident. About 20 people have received injuries of different kinds. They are being treated at different hospitals, mainly in the Chevella Community Health Center, and there's a medical college. वजीर पूनम प्रभाकर ने महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान के साथ अहम जूम मीटिंग की। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर एलम्बर्टी, जेटीसी, डीटीसी, ट्रांसपोर्ट महकमे के दीगर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। रियासत में हादसात का सिलसिला जारी, महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान हादसात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। हादसे में दोनों गाड़ियां फिट होने के बावजूद तंग सड़क डिवाइडर न होने की वजह से पेश आया। हादसे की शिद्दत बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा है कि हमें देखना होगा कि गाड़ियों के स्पीड लॉक पर किस हद तक अमल किया जा रहा और टूटने की सूरत में 3 गुना जुर्माना आयद किया जाए। महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान अमल दरामद में संजीदगी से मुतारिक रहें। जब कोई वाकया पेश आ जाए तो सिर्फ हमले ही न किए जाएं बल्कि सख्त एक्शन लिया जाए ताकि मुसलसल एक्शन प्लान मुमकिन हो। साइबर फ्रॉड मामले में अब फौरी एफआईआर दर्ज किए जाने से मुतल्लिक़ कानून नाफिज होने के बावजूद जालसाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से डिजिटल गिरफ्तारी का चौंका देने वाला मामला सामने आया। खबर के मुताबिक कोहे फिजा थाना इलाके में रहने वाले एडवोकेट शमसुल हसन को कॉल मौसूल हुई, जिसमें खुद को एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड का ऑफिसर बताने वाले शख्स ने कहा कि पहलगाम हमले में आपका नाम आया है। ये बात तहकीकात में सामने आई है। जालसाज ने धमकी दी कि अगर उन्होंने ताउन नहीं किया तो उनके पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कॉल करने वाले शख्स ने वकील को मुसलसल वीडियो कॉल में उलझाए रखा। उसने शमसुल हसन से कहा कि तहकीकात में ताउन करने के लिए उन्हें कुछ देर तक कैमरे के सामने रहना होगा। जालसाज की बातों पर यकीन करके वकील ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और तकरीबन 3 घंटे तक डिजिटल तौर पर कैद में रहा। बाप को इतनी देर कमरे में बंद देखकर बेटे कौशिक को शक हुआ। इसके बाद उसने अंदर झांकने की कोशिश की और फौरन पुलिस को इतला दी। थोड़ी देर बाद कोहे फिजा पुलिस की टीम जाए वक्त पर पहुंची और वकील को बाहिफाजत कमरे से निकाल लिया। पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आई थी उस नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की, ताहम फोन करने वाले ने नंबर ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वकील के फोन से इस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही और साइबर फ्रॉड करने वालों की तलाश कर रही।
गुज़िश्ता कई रोज से सोने और चांदी की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के दरमियान चीन की तरफ से तशवीशनाक खबर आ रही। खबर के मुताबिक चीन ने सोने की खरीदारी पर टैक्स छूट खत्म कर दी। इसकी वजह से एक बार फिर इन कीमती अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। मुकामी वजारत खजाना ने बताया कि खुर्दा फरोश शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने की फरोख्त पर वैल्यू एडेड टैक्स की छूट नहीं ले पाएंगे, ख्वाह बराह रास्त फरोख्त किया गया हो या प्रोसेसिंग के बाद। इस फैसले से चीन में बढ़ती हुई तलब के दरमियान सोने की कीमतों में 3 से 5% तक इजाफा हो जाएगा। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन की रियल एस्टेट मार्केट सुस्त रवि का शिकार है और इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। सोने पर वैट हटाने से हुकूमत की आमदनी में इजाफा होगा, ताहम इस तब्दीली से चीन में सोने की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। कौमी राजधानी दिल्ली हर मौसम सरमा में जहरीले स्मोक की चादर ओढ़ लेती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस बार हवा से इससे भी ज्यादा जहरीली है। इस दौरान एम्स के साबिक डायरेक्टर और मुल्क के मारूफ पाल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खबरदार किया है कि राजधानी को सेहत आमा की हंगामी सूरत हाल का सामना है, जो लोगों के फेफड़ों, दिलों और दिमागों को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही। डॉक्टर गुलेरिया ने खबरदार किया कि दिल्ली की हवा का मियार इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गया है और कमजोर फेफड़े वाले लोग अगर मुमकिन हो तो शहर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर कोई दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता तो उसे अपनी हिफाजत के लिए इक़दाम करने चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना, घर में एयर फिल्टर का इस्तेमाल करना और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना। डॉक्टर गुलेरिया ने वाज़ेह तौर पर कहा कि दिल्ली की फिजाई आलूदगी खामोशी से लोगों की जान ले रही और ये कोविड-19 से ज्यादा जानलेवा साबित हो रही। देर रात गए अफगानिस्तान में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। 5 घंटों के अंदर 2 ताकतवर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.9 थी, जबकि दूसरे जलजले की शिद्दत 6.3 थी। ये जलजला मशरक़ी अफगानिस्तान में आने वाले जलजले के 2 माह बाद आया है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए थे। USGS ने इतला दी है कि जलजला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 12:59 पर कोहे हिंदुकुश के इलाके में मजार शरीफ शहर के करीब खोलम में 28 किलोमीटर की गहराई में आया। दारुल हुकूमत काबुल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। हिंदुस्तानी एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहला जलजला 20:40 पर आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.9 थी। जलजले का मरकज 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। 5 घंटे के अंदर हिंदुकुश के इलाके में दूसरा जलजला आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.3 दर्ज की गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।